Hello students, continuing with the same topic, groups and subgroup. Next theorem is the number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n, where phi n is Euler's function. Last time we did example based on this theorem. So how to write the proof of the theorem? Let G be a cyclic group of order n and is generated by A. क्लियर? G हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया क्योंकि ये फाइनाइट गिवन है, so it is of order, let us say n, and it is generated by A because it is a cyclic group. So therefore G can be written as this time. और क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ A is equal to order of G. So since G is a cyclic group, therefore order of A is also equal to n. ठीक है, is equal to order of group. अगर order of A n है, this implies A to the power n is E, where E is identity of group. Clear? E है, this is E. So what we have to prove? Let पहले लिख लो, let AM is generator of G, group G, where 0 less than m less than n, and ये आपको गिवन है. To prove m GCD with n is 1. देखो, आपने नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना है और नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is phi n. लास्ट टाइम वी डिड डेफिनेशन ऑफ दिस ईलर फंक्शन phi n. phi n का आपके पास डेफिनेशन क्या है? दिस इज इक्वल टू ऑल द इंटीजर्स which are less than n and GCDs of those integers with n is 1, means which are less than n and are co-prime with n, जिनका GCD n के साथ क्या होगा? 1. So हमने यही प्रूव करना है कि जनरेटर्स क्या है? A to the power m is generator of G और m और n का GCD क्या होगा? 1. So हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. सो हाउ विल यू प्रूव दैट GCD ऑफ m एंड n इज 1 अगर a टू द पावर m उसका जनरेटर है. और कन्वर्सली हम क्या प्रूव करेंगे? अगर mn की GCD 1 है और 0 लेस देन m लेस देन n है तो वी हैव टू प्रूव a टू द पावर m इज जनरेटर ऑफ G. सो पहले हम ये पार्ट प्रूव करें. mn GCD इज 1. सिंस a टू द पावर m इज जनरेटर ऑफ G, so every element of G can be written as some integral power of a to the power m. Since a to the power m is generator, therefore every element can be written as integral power of a to the power m. Let a belongs to G implies a can be written as a m to the power t, where t belongs to integer. Clear? So this also implies a m t minus 1 is equal to identity. अगर आपके पास a to the power some integer is equal to identity, इसका मतलब order of a is less than or equal to this, or order of element divides this. So this implies order of A divides mn minus 1. Clear? mt minus 1. अब order of A कितना है? Order of A is n.
सो यहां से आपके पास क्या आ गया, n डिवाइड्स mt माइनस 1। अगर n डिवाइड कर रहा है mt माइनस 1 को, तो दिस इंप्लाइज mt minus 1 can be written as n times some integer q, where q belongs to integers. So this implies mt minus nq is equal to 1, clear, where 0 less than m less than n. So यहाँ से क्या प्रूव हो गया, that GCD of m and n is 1. So this implies GCD of m and n is 1. So this completes the first part. अब हमने converse पे जाना है. So conversely में let GCD of m and n is 1 and 0 less than m less than n. और हमने proof क्या करना है, to prove a to the power m is generator of G. ठीक है, सारे a टू दी पावर m क्या होंगे, जनरेटर ऑफ G, जिनका GCD n के साथ क्या होगा, 1. क्लियर. सो सिंस mn का GCD 1 है एंड 0 लेस देन m लेस देन n, तो बाय प्रॉपर्टी यू हैव, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स से p, q such that m times p plus n times q is 1. Clear? Now a can be written as a to the power 1 can be written as 1 की जगह आप क्या रख दोगे, mp plus nq. This can be written as mp into a to the power nq. This can be written as a to the power mp into a to the power n, a to the power n raised to power q. A to the power n is identity because order of a is n. So this is identity into this is a to the power mp. Since G is cyclic group, G is let G is cyclic group generated by A. अगर G cyclic group है, यह हमने पहले लिया था, और वो जनरेट हो रहा है एलिमेंट A से, ठीक है, then every element, then x belongs to G can be written as integral, then x belongs to G implies x can be written as integral power of A, where r belongs to integer. Clear? x हम कैसे लिख कोई भी एलिमेंट x ग्रुप का हम कैसे लिख सकते हैं, इंटेग्रल पावर्स ऑफ A, और A की वैल्यू क्या है, mp. यूजिंग 1 x is equal to a to the power mp raised to power r. So this also implies x is equal to a to the power m pr. ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, every element of G can be written as integral power of a to the power m. ठीक है, p और r इंटीजर है, so every x can be written as a इंटेग्रल पावर ऑफ ए एम. तो इसका क्या मतलब हुआ, ए एम क्या हो गया, इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी. सो यही आपने प्रूव करना था कि ए टू द पावर एम इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी. सो दिस प्रूव्स द थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. लेट G be a cyclic group generated by A and H be subgroup of G. To prove what we have to prove, H is cyclic. Clear? अब H साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि H इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट और बाय इंटेग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट. सो अब जो एलिमेंट्स G के होंगे वही एलिमेंट्स H के होंगे. अब G में कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, G में एलिमेंट्स इंटेग्रल पावर्स ऑफ A पड़ी है. ठीक है, सो H में किस तरह के एलिमेंट्स हुए, इंटेग्रल पावर ऑफ A.
सो लिखो सिंस H इज subgroup of G, therefore every element of H is element of G also. Therefore every element of H is of the form a to the power I, where I is some integer. ठीक है, इंटेग्रल पावर्स ऑफ a पड़े हुए हैं वहां पे. सो लेट k be the least positive integer for which a to the power k belongs to h. ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर h में पड़ा है वो a टू दी पावर k है. मींस h में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? a टू दी पावर k प्लस k से बड़े वाले k प्लस 1 k प्लस 2 एंड सो ऑन. सबसे छोटा इंटीजर जो है वो a टू दी पावर k है जो h में है. ठीक है, एंड वी विल प्रूव दैट h इज जनरेटेड बाय a टू दी पावर k. वी विल प्रूव या लिख लो वी विल क्लेम that h is generated by integral powers of k. तो हम ये प्रूफ कैसे कर देंगे? अगर हर एक एलिमेंट h का कैसे लिखा जाए? a की पावर की इंटेग्रल पावर्स में. सो लेट अस टेक सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू h और हम मान लेते हैं कि x एंड x इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर सम इंटीजर n. ठीक है, और n जो है वो k से बड़ा है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़े को डिवाइड कर देगा. n इज इक्वल टू k टाइम्स q प्लस r, वेयर 0 लेस देन r लेस देन k. ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स k एंड q. k is already defined for some integers q and r. Clear? अब a to the power n is x can be written as a to the power kq plus r. This can again be written as a to the power, this x can be written as this, or you can say this implies a to the power n is equal to a to the power kq plus r. So this implies n is equal to, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power n माइनस kq is equal to a to the power r. r को इधर ही रखा, kq को इधर ले आए. अब स्टूडेंट्स a to the power k h में है, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए a to the power k कहाँ है? h में, और h एक ग्रुप है बिकॉज इट इज अ सब ग्रुप, तो इसका इनवर्स भी h में होगा. So this implies a to the power minus k is also belongs to h. अब देखो, अगर आपके पास एक एलिमेंट a h में ग्रुप में है, g में है, तो उसके सारे मल्टीपल ग्रुप्स में आ जाते हैं इंटेग्रल मल्टीपल्स. कैसे? अंडर मल्टीप्लीकेशन. अगर एक एलिमेंट a g में है तो a इंटू ए भी g में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से a स्क्वायर g में चला गया, a स्क्वायर इंटू a फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी से a क्यूब चला गया, तो सारी इंटेग्रल पावर्स आ जाएंगी. इसी तरह अगर a की पावर k h में है, इसको हम q टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? a टू द पावर k क्यूब भी किस में चला जाएगा? h में, और उसका इनवर्स भी किस में चला जाएगा? h में. तो a टू द पावर माइनस k क्यूब कहाँ है? h में, और a टू द पावर n भी कहाँ पे है? h में. दिस इज एलिमेंट ऑफ h. तो ये पूरा एलिमेंट कहाँ चला गया? h में. लिख लो, सिंस a to the power n minus kq belongs to h, this implies a to the power belongs to h. अब a to the power h belongs to h implies कि जो हमारा r है वो अगर लेस देन k हुआ, तो ये तो हमने मान ही रखा है कि k इज द लीस्ट, तो उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता h में. सो देयरफॉर सिंस a to the power k is the least positive integers belongs to h, implies
r मस्ट बी 0। अगर r 0 हो गया तो n किसके इक्वल आ गया, n इज इक्वल टू k क्यू। सो x कैन बी रिटन एज a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर k टाइम्स q। सो एवरी एलिमेंट ऑफ h कैन बी रिटन एज इंटेग्रल पावर ऑफ a टू द पावर k। ठीक है, q इंटीजर था, सो हर एक एलिमेंट हमने शो कर दिया h का कि वो कैसे लिखा जा सकता है a टू द पावर k की इंटेग्रल पावर्स में। सो इसका क्या मतलब हुआ, a टू द पावर k इज जनरेटर ऑफ h। सो अगर a टू द पावर जनरेटर है h का तो h इज साइक्लिक ग्रुप। तो अगर h साइक्लिक सब ग्रुप है, वो ऑलरेडी सब ग्रुप था g का, सो एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सो दिस कंप्लीट्स द proof. Next theorem, show that if G is an infinite cyclic group, then G has exactly 2 generators. Clear? So अगर आपके पास G एक infinite cyclic group है तो सिर्फ उसके कितने generators होंगे, only 2. Let G be an infinite cyclic group such that A be the generator. अगर A generator है तो G के सारे elements कैसे लिखे जा सकते हैं, इंटेग्रल पावर्स ऑफ ए में। तो आपके पास इंटेग्रल पावर्स ए में लिखे जा सकते हैं, और क्योंकि आपके पास जो साइक्लिक ग्रुप है वो इनफाइनाइट है, तो कोई भी 2 पावर्स जो हैं, वी क्लेम दैट नो 2 डिस्टिंक्ट इंटेग्रल पावर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर वो इक्वल हो गई तो क्या होगा, लेट अस सपोज 2 इंटेग्रल पावर्स ऑफ ए आर इक्वल, कि कुछ स्टेज के बाद a रेज टू पावर r किसके इक्वल हो गया, a टू दी पावर s के। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a टू दी पावर r माइनस s आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू r माइनस s विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी हो गई तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है। अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है और g साइक्लिक है तो g का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। तो साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ जनरेटर तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज जनरेटर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। सो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इट मींस कोई भी 2 पावर्स कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, सो आपके पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, एक इनफाइनाइट इंटेग्रल पावर। सो जी कैन बी रिटन लाइक दिस। उसके बाद हमने एक थ्योरम और की थी कि जिस ग्रुप में a जनरेटर है वहां पे a टू दी पावर -1 भी जनरेटर होगा। सिंस a टू दी पावर r इंटेग्रल पावर a कैन बी रिटन एज a टू दी पावर -1 इंटू -r। सो every element can also be generated by a to the power -1, therefore a to the power -1 is also जनरेटर ऑफ g। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें एक तो a जनरेटर है जो हमने लिया था, और एक हमने प्रूव कर दिया a टू दी पावर -1 जनरेटर है। इसके अलावा यहाँ कोई और जनरेटर होगा ही नहीं। तो लेट अस वी सपोज कि हमारे पास a टू दी पावर 1 और a टू दी पावर -1 के अलावा एक और जनरेटर है a टू दी पावर m। सो लेट अस टेक a to the power m is also generator of g। ठीक है, for all m belongs to integers other than, अभी तो आपने प्रूव 1 and -1 और -1 को छोड़ के a to the power m कोई और इंटीजर भी इसका जनरेटर है। If a to the power m is generator, then a can be written as integral power of m, a to the power m की integral power, let us say k belongs to some integer. So what you have a mk is equal to 1 or mk -1 is equal to mk is equal to 1. This implies mk is equal to 1. This is 1, this is mk. ठीक है, for अब m भी एक इंटीजर है, k भी एक इंटीजर है, और 1 होने के लिए क्या ऑप्शंस है इनके पास, m1 k1 तब 1 आएगा, या फिर m-1 k-1 तब 1 आएगा। बट k तो +-1 हो सकता है, बट n can never be 1 and -1. So this is not possible. So which is not possible.
सो अगर ये पॉसिबल नहीं है, दिस इंप्लाइज a to power m is not a generator of G. ठीक है, so this implies a and a to the power minus 1 is the only generator of G. So we have proved for an infinite cyclic group a to the power a1 and a to the power minus 1 are the only generators. So students, this completes the topic. Thank you for watching the video.